good afternoon, good morning, namaskaram, namaskar, and vanakkam. Welcome to Bob's Radio 21.37 FM. And this is Bob with you, dear listeners. Welcome to our Hindi language broadcast right here on Bob's Radio. And you've tuned in to our Motivational Mondays. Well, if you are here for the first time, do remember that we have lots of other segments that we've done. You can simply go to our YouTube or Facebook pages and type in Bob's Radio 21.37 FM and you'll find all our segments there. If you'd love hearing us, please do share these links with your friends and family and let them also come to know what God is doing in the lives of His people. Bob's Radio, connecting hearts and creating hope. We broadcast every Monday, Wednesday, and Thursday of the week in Hindi, Bengali, and in English. Well, dear listeners, thank you so much for tuning in today on the beginning of this week. I hope you all had a good weekend. You refreshed and renewed yourself. And I'm so happy that you are here with us today. I hope that the Lord will speak to you and will have a good time today on this radio. Wherever you are, whichever part of the world you're listening from, welcome and we love you for being here. Don't we, Anuj? Absolutely, Bob. How are you? I'm doing good. How are you? I'm good. I use the English part just for you to understand, you know that. Yes. मेरे I love सारे that. श्रोताओं को मेरी तरफ से good evening, नमस्कार. Yes, and we love talking in both languages primarily. This might be the only Hindi language radio where the host does not speak in Hindi. True, very true, Well, very true. But then I when you were talking about motivational Monday, yeah, I wanted to ask you, Bob, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? Hindi mein, I have no idea. That's your homework for the next week, huh? All right. So next week I'll try to find out how to say Motivational Monday in Hindi. That's right. All right. So with that, let's go to our first song for today. Another beautiful song, Kaise Bataye. Wow, what a beautiful song. Always gives us a lot of energy, a lot of inspiration and motivation. है ना Anuj, hearing these songs? बिल्कुल सही बॉब आप बोल रहे थे ना कि मंडे को यू गो फुल विथ ऑल एनर्जी सारे Yeah. एनर्जी के साथ ऑफिस जाते हो बट मंडे को पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है पर ये आपने जो गाना डाला ना सच में बोल रहा हूँ लिटरली बैटरी फुल टू चार्ज हो गया है All right. All right. We have somebody else joining us who is always motivational, inspirational, and full battery charged. Let's listen to Sister Mary Lijish on her segment, Choti Kahaniyon Ka Badi Baat. पता
है क्या आने वाला है? क्या? छोटी कहानियों की बड़ी बातें। कहानियाँ? हाँ। छोटे कहानी के बड़े बात में आपका स्वागत है। एक परिवार था। इस लड़की के बारे में जिसकी कहानी मैं सुना रही हूँ, वो हमेशा अपने माता पिता से, पास्टर से, संडे स्कूल टीचर से, सबसे सुनती रहती थी, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, वो हमारे प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनता है, वो हमारा ख्याल रखता है, वगैरह वगैरह। यह वक्त था गर्मियों का। गर्मी ने सारे पेड़ पौधों का, जानवरों का, इंसानों का भी बड़ा बुरा हाल कर रखा था। सबको अब बस बारिश का ही इंतजार था। किसानों का भी बड़ा बुरा हाल था गाँव में। एक लड़की का परिवार भी खेती पर ही निर्भर था। खाना मिलना भी मुश्किल हो रहा था। सारे किसानों ने मिलकर निर्णय लिया कि कलीसिया में जाकर प्रार्थना करेंगे। सबने एक दिन तय किया और पादरी को बता दिया। पादरी भी किसानों का परमेश्वर पर विश्वास देखकर खुश हो गया। इतवार को शाम का समय आया जब सब लोग प्रार्थना करने आए। कलीसिया के सामने वाले दरवाजे पर खड़े खड़े सब चिंता भर की बातें करने लगे। आवाजें तेज होने लगी। तभी पादरी ने सबको चुप कराया और बारिश के लिए विशेष प्रार्थना प्रारंभ करने के लिए अंदर आने को कहा। सब लोग अंदर आए। प्रार्थना शुरू हुआ। सब लोग प्रार्थना करने लगे, कुछ तेज आवाज में, कुछ आराम से, कुछ मन ही मन, पर सब लोग दिल से, सच्चाई से प्रार्थना कर रहे थे। पर किसमें ये विश्वास था कि प्रभु प्रार्थना का उत्तर था, यह सोचने की बात है। तभी जो पादरी है, उन्होंने देखा कि एक लड़की करीब 10-12 साल की, बहुत ही आनंद के साथ, चमकता हुआ चेहरे के साथ, एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ सामने वाले बेंच पर बैठी हुई है और उसके हाथ में भी कुछ था, जिसको देखकर अब पादरी को भी हंसी आ गई। पता है क्या था? एक बड़ा सा छाता। पादरी को इस लड़की के विश्वास पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, इतने बड़े बुजुर्ग लोग जब रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ एक छोटी लड़की को इस बात का विश्वास है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। हाँ प्रियो, हमारे इस कहानी में प्रार्थना के बाद बारिश हुआ कि नहीं हुआ हमें नहीं पता। यह भी एक विश्वास ही की बात है, क्योंकि जरूर उस लड़की के विश्वास को देखकर परमेश्वर ने बारिश किया होगा और बस वही लड़की बिना भीगे घर पहुंची होगी, बाकी सब भीग गए होंगे। हाँ प्रियो, हमारा विश्वास कैसा है? हमारा छाता कहाँ है? हाँ दोस्तों, क्यों ना हम ऐसे बने? ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात ठहरेगा अगर हमारे घरों में, परिवारों में, कलीसियाओं में एक भी ऐसी लड़की हो जो इतना विश्वास करे कि बारिश के लिए प्रार्थना करते समय छाता जरूर लाए। तो हम भी ऐसे ही विश्वास करें परमेश्वर पर, जैसे इस छोटी सी लड़की ने किया था। उसके लिए परमेश्वर आपको मदद करे। इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की। Wow, what a story, Anuj. बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, सिस्टर मेरिन बहुत अच्छी तरह से कहानी बताती है, और स्पेशली ये जो कहानी है बॉब, ये इसमें बहुत सच्चाई है। अगर आप देखोगे, सुनोगे, बहुत ज्यादा सच्चाई है। क्योंकि हम लोग, सब लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, पर कितने लोग वो प्रार्थना करते हुए वो विश्वास, पूरी तरह से विश्वास करते हैं। मीन्स जस्ट आपको सोचने, मैं सोच, आप सोचिए ये बात को, वो जब बारिश हो रहा होगा और सारे लोग जब भीग के जा रहे होंगे, उसमें से वो लड़की अकेली उसको छाता लेके जा रही है, उसके विश्वास वहां पे दिखाता है। स्वर्ग में सब लोग कितने खुश हो रहे होंगे उसको देख के। सही Absolutely. है ना? मीन्स हमारे दिलों में भी यही सही बात है। हम लोग कितने प्रार्थना करते हैं, पर कितना विश्वास है कि हाँ, परमेश्वर इसको पूरा करेगा। Yes. ये इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पूरे विश्वास से प्रार्थना करो, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। Absolutely. And that is something that we need to think about. You know, are we sincerely praying, and are we expecting an honest answer
to our prayers? That's a good question. And looking around us, we always love to look at what is happening around us on the radio, talk a little bit about that. The other day, Anuj, I was looking at this headline, and there was the Bihar chief minister who said a question like this: how can you change history? He says, it is beyond my understanding how history can be changed. History is what it is. History is history. Now, he was responding to a statement that a union minister had recently made. And I don't want to take the name, but the minister was saying that we need to look at the history that is being taught and we need to rewrite history. There was the historians, when they put together the history of India, there was a lot of history that was not written. There were bits and pieces that were missing. Some things were not given enough emphasis. So all this talk about rewriting history, and this person says, I don't understand. How can you change history? Now, this is a question that a lot of people have been asking. The world is trying to. A lot of people are going through this effort to change history, है ना? बिल्कुल सही बॉब। मीन्स आप देखोगे दुनिया भर में हर वर्शन की हिस्ट्री मिलेंगे आपको। हर बंदा अपना हिस्ट्री में अपने अपने मुताबिक, हर कंट्री अपने मुताबिक एक अलग हिस्ट्री बनाना चाहता है। जैसे अभी ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है, हाँ, उसी को देख लीजिए। यूक्रेन का एक अपना अलग सा वर्शन होगा कि क्यों ये लड़ाई हो रहा है। रशिया को उसको correct. जस्टिफाई करने का अलग सा एक कारण होगा। तो हिस्ट्री वो Correct. अपने मुताबिक बनाना चाहते हैं। हर Yes. बंदा हिस्ट्री को अपने लिए बदलना चाहता है। And like they say, history is written by the victors. Yeah, I बिल्कुल mean, सही। whoever wins the war get to write the history, and this is something that we all see happening oftentimes. People want to rewrite the history. There is so much that is coming to my mind. When I talk about it, it's one of my favorite subjects, and this is a challenge that we are facing today, where people want to rewrite the history and make it more favorable to them. If there is something that they don't like in history, they want to rewrite it and make it more suitable and to sound nice. And this is something that is very true in our lives as well. Hena Anuj, we look at our history, sometimes we are not really happy with our history. बिल्कुल सही बॉब। मीन्स मैं खुद ही बोल लूंगा कि कितने बार मैंने खुद सोचा है, यार जो किया वो नहीं सही था, आई वांट बदलना है। मैं डॉक्टर Rewrite. बनना चाहिए था, या मैं को कुछ और बनना, इंजीनियर क्यों बन गया। मीन्स ये सब चीजें हम लोग सोचते हैं चेंज करने के लिए। पर जैसे बोला, Exactly. जैसे बिहार के सीएम ने बोला, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, उसको बदल नहीं हिस्ट्री सकते। तो हिस्ट्री है उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला कल है, मीन द फ्यूचर, दैट इज समथिंग दैट वी कैन रीराइट. And how do we do that? How can you rewrite your future? वो कैसे हो सकता है? अब बॉब, जब आप फ्यूचर बोलोगे, अगर आप बहुत ही पास वाला फ्यूचर बोल रहे हो कल के लिए, तो मेहनत करने से ये सब आप अपना फ्यूचर को बदल सकते हो। पर अगर आप सही मायने थे फ्यूचर, मतलब हमारे 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 अंतिम समय के बाद, हमारे मौत के बाद का फ्यूचर की बात कर रहे हो, पर तो वो फ्यूचर अगर आप बदलना चाहते हो, मतलब आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाना चाहते हो, उसको आप बदल सकते हो अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे। करेक्ट. और हम ये एक जो इतिहास जो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग बोलना चाहिए, जो बदला नहीं है, 2000 साल हो गए, वो बदला नहीं है कभी, वो परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में है। Absolutely. इतिहास And that is what we love to say. History is all about his story. Right? It's about बिल्कुल the सही। story of Jesus Christ, and history is all about his story. And if we know him, the one who has created history, the one who divided the AD and BC, and the one who came into the middle of this world and created history, so many people, both लोग हैं कि they don't want to accept that also as a history, है ना? वो बोलते हैं कि नहीं ये सिर्फ कहानी है. They don't want to accept that. They want to change that also. You see that, right? People don't want to accept that as real history. नहीं सही है बॉब, क्योंकि अभी भी इतने सारे सेक्शन ऑफ पीपल हैं जो आज भी ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह बस एक काल्पनिक कहानी है। पर ये एक सच्चाई है, और ये सच्चाई बार बार
साबित होते ही आई है कि परमेश्वर यीशु मसीह आए, उन्होंने एक मनुष्य का रूप धारण किया, उन्होंने क्रूस पे, Yes. कलवरी क्रूस पे अपनी अपनी जान मनुष्य के लिए दी, उनके पापों के लिए दी। पर वहां पे कहानी खत्म नहीं हुआ। हर हिस्ट्री में आप अगर देखोगे, हर हिस्ट्री जिसमें भी जो भी पात्र रहे हिस्ट्री में, हर हिस्ट्री के पात्र कैरेक्टर जो भी थे, वो आए, मरे और चले गए, खत्म हो गए, दफन हो गए, खत्म हो गए। और Yes. ये एक यीशु मसीह ही एक वो पात्र है, दैट ही इज द ओनली कैरेक्टर जो हिस्ट्री में भी आज प्रेजेंट है। ही इज अलाइव। Yes. दैट इज आवर फ्यूचर। ही That is इज our द future. रीजन। ये है वो कारण हमारा फ्यूचर इतना ज्यादा सिक्योर है। Yes, absolutely. Absolutely. Well, these are things that we need to think about. Thank you so much for these thoughts, Ajay, Anuj. I think we have lots more to talk about. We have a wonderful guest who's coming to joining us today, who's going to add lots more to this conversation. But before we go, let's listen to another song. Yes? बिल्कुल सही बात। All right, let's go and listen to this beautiful song, El Shaddai, Tere Jaisa Kaun Hai. बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। और शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शेदाई आराधना। El Shaddai, Aradhana. What a beautiful song. Well, it's time we bring our special guest on air today. We have a very, very special person with us. Today, dear listeners, we have David Sehar with us. David Sehar has done his schooling in MP, graduation from Mumbai University, and PG certification in advertising from MICA Ahmedabad, Gujarat. He has decades of experience in the advertising field. He's married to Salome and they have a son named Titus. He's got an interesting story to tell us, an amazing journey. Let's listen to what David Sehar has to tell us today. Let's bring him on air. Bob's Radio 21.37. Keep bobbing along. Hi, Brother David. Welcome to Bob's Radio 21.37 FM. Hi, Brother Bob. Tell us about Mumbai, Amchi, Mumbai. Yeah, it started raining now. It is. The thing is changing. The environment is changing now.
It is. I know. I see that when it rains above a certain, certain centimeters, you can say, it always starts flooding in Mumbai, right? Or is हाँ, that only once in a while? ये बात सही है, पर जब वो बहुत बारिश गिरता है तब इस प्रकार का होता है, भर जाता है, अच्छा. फ्लडिंग हो जाता है, ट्रेन रुक And जाता है, बसेस रुक जाते हैं। and इसके लिए तो solution, I mean, I don't think anybody has come up with a solution, है ना? हर साल एक्चुअली यही बात हो रहा है. हाँ, पर इधर का दिक्कत यह है कि जब वो हाई टाइड हो जाता है और उसी समय अगर बारिश आ जाए हम्म. तो भर जाता है, फिर हमारा इधर उधर हिलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा. I love Mumbai. It is a happening city. बहुत कुछ उधर हो रहा है, बहुत लोग, it's such a melting pot of cultures, and it's so wonderful to be there. As somebody who's listening to us from far far away, let's say in North America or maybe in the Middle East, what is it that you love about Mumbai? द स्पीड। जिस रफ्तार से जो हम यहाँ पर रहते हैं, जिस रफ्तार से हम जाते हैं, काम होता हाँ है, हाँ. तो जब भी हम दूसरे शहर में जाते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि अरे ये काम तो हमारे इधर पर 10 मिनट में हो जाएगा। ये डिस्टेंस हम 10 मिनट में तय कर लेंगे, पर वहां पर दिक्कत हो जाता है कि भैया थोड़ा धीरे हो जाओ, ये तो मुंबई के स्पीड पे नहीं है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज है, दिन हो रात हो, वो हाँ. रफ्तार यहाँ पर चलता रहता है। I can see, Anuj, you want to say something. या डेविड भाई, मैं तो सोच रहा था कि आप बोलने वाले हो कि मुंबई का वड़ा पाव। हाँ, Oh. मैं पूछने वाला था बॉब से कि वड़ा पाव खाए क्या कभी इधर पर। दैट एक इज बार तो मैंने पासिंग में खाया एक बार, वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही टुक मी एंड ही सेड, तो ये तो खाना है, बड़ा पाव इज द बेस्ट, एंड ट्रस्ट मी, it's just bread and potato, but let me tell you, I have never tasted something as good as that bread and potato. It was या amazing. या इंडियन बर्गर्स, इंडियन Indian, बर्गर्स। Indian, Indian burgers. Yeah, yeah. Amazing. Well, to all our people, our listeners, our friends who are listening to us from Mumbai, we love you. And our love from Bob's Radio to all of you out there, especially to all of our friends and listeners. Well, David, we love to talk to you about your life and your story. But before we go there, there's something interesting that as you were telling me about your story the other day, you told me about the church that you grew up, and you told me that the church had focused a lot on taking the gospel to people in prisons, and how that has influenced the life of the people in the church, even coming to many generations forward. And the question is, why have the church been so excited to go and speak to these criminals? I mean, weren't they a lost cause after all? भाई, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। जिस कलीसिया में मैं, जिस चर्च में मैं पैदा हुआ और अब बड़ा हूँ, वो है जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। और एक छोटा सा शहर है, पर यहाँ पर थोड़ा क्राइम रेट ज्यादा है। और कई ऐसे लोग हैं जो मे भी एक अच्छे घर के घराने के होंगे, पर किसी परिस्थिति में ऐसे फंस गए, हो सकता है मर्डर या फिर चोरी में, इस प्रकार के इसमें फंस कर वो कैद के अंदर हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है कि जहां पर परिवार भी उनसे नाता तोड़ देता है, उनसे बात नहीं करना चाहता है, और सोशल लाइफ भी उनका कट जाता है। और अगर आप जानते हैं, कैद के अंदर भी बहुत मारपीट होता है, वहां पर भी गुंडागिरी होता है, वहां पर भी एक दादा होता है। इस प्रकार का रहता है कैद के अंदर की परिस्थिति। और बाहर से तो एनीवेज जो उनके दोस्त है, परिवारजन है, उनको त्याग देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम परमेश्वर के प्यार के बारे में बताते हैं, या फिर हम प्यार से ही बात कर लेते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो इस बात को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और ये कलीसिया, एक प्रभु के दास थे, अंकल एजे रोबरी और आंटी ग्रेस रोबरी, जो यूके से आए थे। और इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि ऐसे जेल में जाएं
और परमेश्वर का संदेश सुनाएं और परमेश्वर के इस प्रेम के बारे में बताएं जो व्यक्ति को सबने त्याग दिया, जो व्यक्ति से सबने अपना नाता तोड़ दिया, उस व्यक्ति से जब आप नाता जोड़ते हो और परमेश्वर के प्यार के बारे में बताते हो, तो वो जो जकड़ रहती है परमेश्वर के साथ, वो बहुत मजबूत हो जाती है। और इसी प्रकार से कई लोग प्रभु के दास अंकल विजय अलेक्जेंडर जो अभी प्रभु के साथ है, वो जबलपुर असेंबली के जो फुल टाइम वर्कर थे, वो भी इसी प्रकार से प्रभु ने बचाया और उन्हें बाहर लेके आया। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। दो अंकल ने अंदर, ये एलेक अंकल ने अंदर ये वचन पढ़े और ऐसा कहा जाता है कि उनने कंठस्थ किए, he memorized the gospel portions when he came out। वो कंठस्थ करके बाहर निकले, तो इस अच्छा। प्रकार से प्रभु के साथ उनका नाता जुड़ गया। पर जब वो बाहर आते हैं तो उसके बाद भी उनके जो दोस्त यार रहते हैं या फिर उनके जो दुश्मन रहते हैं, वो छोड़ते नहीं है उनको। उस समय पर भी वो प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, और ये बहुत प्रोत्साहन का काम होता है जब हम जैसे जो एक नाम प्रभु के दास या प्रभु के साथ बने हुए घराने में पैदा होते हैं, जब हम इनको देखते हैं, ये जो गुस्सा करते थे, ये जो मारपीट करते थे, ये जो मर्डरर थे, ये जो चोरी करते थे, ये जब बाहर आए, परमेश्वर का जो तकदीरी जो उन्हें परिवर्तन देखते हैं, आप भौचक्का हो जाओगे। यू विल बी अमेज्ड बाय द वे दैट दे behave after they are saved. The transformation is absolutely amazing. So कलीसिया इसमें बहुत प्रोत्साहित होता है, और हम जो जवान रहते हैं, जो जवान थे, तो हम इस प्रकार की गवाहियों को देखे थे, और वो बहुत प्रभाव डाला हमारे जीवन में कि प्रभु का काम और प्रभु का प्यार जब जिक्र किया जाता है तो उसका कोई सीमा नहीं है। वो एग्जैक्टली यू टर्न हो जाता है बंदा, वो किसी और दिशा में जाता रहता है, फिर अचानक यू टर्न लेके वो एक नया आदमी बन जाता है। दैट्स द न्यू जनरेशन दैट वी सी इन दैट पर्सन। भाई डेविड, आपने जो बताया बहुत ही दिल को छूने वाली ये बात है। आपके लाइफ में भी ऐसे काफ़ी इंसिडेंसेस हैं। आप हमें अपने बचपन, अपने पेरेंट्स के बारे में, और स्पेशली आपने जैसे पिछले बार बता रहे थे, आप अपने ज़िंदगी के 9 साल की उम्र तक आपको आपके पेरेंट्स के अलावा कोई छूता नहीं था। क्यों ऐसे था? और वो पहला स्पर्श बाहरी किसी आदमी ने आपको जो छुआ, तब आपको उसके जी बारे में याद है? उसके बारे में आप थोड़ा-सा हमें शेयर करेंगे? जी जी, मैं एक आम परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरा परवरिश, मेरे माता पिता ही एक नॉमिनल क्रिश्चियन, एक नामधारी मसीही थे, और वो प्रभु ने उनको छुड़ाया। मेरे पिताजी नेवी में थे, नौसेना में थे, भारतीय नौसेना में, और वहां पर प्रभु ने उनको छुड़ाया। तो ये हमारा घराना पूरा डिफेंस का है, मम्मी की तरफ भी और पिताजी की तरफ भी। और आपको आपको ये ज्ञात होगा कि जब डिफेंस में रहते हैं तो दारू, और ईसाई होने के नाते दारू ये तो आम चीज हो जाती है। उस समय पर प्रभु ने मेरे पिताजी के दिल में काम किए और उस वहां से छुड़ा कर उनको लेके आए। तो पर इसमें एक बात यह है कि मेरी एक बहन है, बड़ी बहन है, उसके बाद मैं, 3 साल का हमारा डिफरेंस है आयु में। तो जब मैं पैदा हुआ, ऐसा ऐसा मैं समझता हूँ कि मैंने मम्मी के कोख से ही बहुत परेशानी शुरू कर दिया था। तो मम्मी को बहुत दवाइयाँ खाने पड़े, और इस प्रकार का मुश्किलाहट थी जब मैं मम्मी के कोख में था, माँ के कोख में था। तो और उसके कारण जब मैं बाहर निकला तो मेरे हाथ और पैर में बहुत सारे फुंसियाँ थे, बॉयल्स, एंड उसके कारण बहुत संघर्ष था कि मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। मैं एक आम जिंदगी जी नहीं पाया। मेरे से सब दूरियां बरकरार रखते थे कि इसको कुछ है जिसके कारण इससे दूरी रखें। बातचीत कम था, और पर ऐसी ऐसी स्थिति में
ये चलता रहा तकरीबन 8 से 9 साल तक। और उस समय पर एक प्रभु के दास अंकल चार्ली जॉन आए थे जबलपुर में सेवकाई के लिए, और वो मुझे छूकर पहली बार किसी ने मेरे को छुआ और हाथ लगा के बोला, ऐसा स्पर्श करते हुए कहा कि हम प्रार्थना करेंगे और ये सब ठीक हो जाएगा। और कुछ कुछ महीने के बाद, कुछ कुछ दिनों के बाद प्रभु ने अद्भुत रीति से इससे मुझे छुड़ाया। और अ, इस प्रकार के चीज को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, जिससे इतना परेशान था मैं कि आप विश्वास नहीं करोगे कि सॉक्स पहन के मुझे छुपाना पड़ता था कि पैर में सॉक्स पहनूं तो छुप जाएगा। पर ओह! जब वो छुप जाएगा तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका परिणाम ये है कि जब वो सूख जाता है तो अब ये सॉक्स खोलना पड़ता है, तो वो तब चिपक जाता है वो। सही बात है। तो वो एक दर्दनाक मतलब इट वाज अ पेनफुल एक्सपीरियंस, बट उससे ज्यादा दर्द, घाव से ज्यादा दर्द एक्चुअली जो लोगों ने बर्ताव किया, जिस तरह से दूरी बरकरार रखी, या फिर दैट स्कार्स, द वुंड हैज हील्ड बट द स्कार्स रिमेन। बट एट दिस सिचुएशन आल्सो, जब जब हमने वो अंकल चार्ली को देखा और उस प्रकार के परमेश्वर के प्रेम के द्वारा वो प्रेम दिखा पाए, वो एक अद्भुत चीज था। वो मुझे नहीं लगता है कि एक आम इंसान इस प्रकार से कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल ये परमेश्वर की तरफ से हो, प्रभु के प्रेम को जताने की। इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में थे, हम जानते हैं कि वो किस प्रकार से कोढ़ी को छूते हैं, तो और वो कोढ़ी किस प्रकार से चंगाई प्राप्त करता है। वो प्रभु का प्रेम तब था और प्रभु का प्रेम अभी भी है, कई लोगों के द्वारा हमारे बीच में प्रकट होता है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं उनके उस प्रेम के लिए जो स्पेशली चार्ली जॉन अंकल के थ्रू आपको वो दर्शा सके। सॉरी, मेरा थोड़ा आवाज इमोशनल हो चुका है इस कारण सुनते हुए। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ भाई, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसने आपको प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया, और आपके आपकी आपकी उसके लिए आपको आपके मार्गदर्शक कौन था, आत्मिक मार्गदर्शक कौन था? जी, जी। तो जिस प्रकार से मैंने बोला कि ये संघर्ष एक तरफ था, ये फुंसी का या बॉयल्स का, तो दूसरी तरफ प्रभु ने अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे ये पहचानने के लिए भी मौका दिया। वो था एक शाम जब अंकल एजे रोबरी, ये थे यूके के एक प्रभु के दास जो इंडिया में विजिट करते थे आंटी के साथ। उन्हीं का सेवकाई से ये कलीसिया स्थापित हुआ था। तो वो एक दिन जब शाम को प्रभु का वचन सुसमाचार सुना रहे थे, तो उनने इब्राहिम के बारे में लिए। इब्राहिम ने जिस तरह से अपना पूरा जिम्मेदारी अपने नौकर को या अपने दास को, एलियाजर को दे दिया था कि जाके तू मेरे बेटे के लिए एक दुल्हन ढूंढना। तो वो जाता है तकरीबन 450 मील दूर, और जाके वो जब ढूंढता है रेबेका से, और उनने बहुत अच्छी से उसकी पहनाई की, बहुत खातिरदारी करते हैं। एक दास के लिए इतनी पहनाई होती है और खातिरदारी होती है, और इतना विश्वास है कि रेबेका उसके साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाती है। इतना ही नहीं, ये दास के साथ उसके जो कैमल थे, उसके जो ऊंट थे, उसको तक उन लोग स्वीकार करते हैं, और उसके लिए भी एक इन देते हैं, एक जगह देते हैं कि वो रह पाए। और इसको फिर उनने, अंकल ने खूबसूरती से प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 20वें वचन में लेके गए, और उस पे उधर इस प्रकार लिखा है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो उनका ये कहना था कि एक दास के लिए दरवाजा खोला गया, एक दास के लिए इस प्रकार की पहनाई हुई, एक दास के ऊंट के लिए इस प्रकार की खातिरदारी हुई। क्या आप अपने प्रभु यीशु मसीह जो सृष्टि के कर्ता है उसको स्वीकार नहीं करोगे? वो आपके द्वार पर खड़े हुए खटखटाता है, क्या आप उसको अंदर नहीं लोगे? तो वो बात मुझे छू ली पवित्र आत्मा के द्वारा, और उसी शाम रोते हुए मैं
अंकल के पास गया। तकरीबन मैं 7 साल का था तब, और प्रभु की अगुवाई से मैं बचा, और मैं ये माना कि मैं पापी हूँ, और मेरे पाप, शायद मेरे पाप उस समय के झूठ होंगे, मैं चोरी करता हूँ, इस प्रकार के चीज मेरे दिमाग में आया। और उससे मुझे बचाने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने ही उस क्रूस पर अपना खून बहाया, और कोई नहीं है जो इस प्रकार का मुझे प्यार करता है और अपना उद्धार देना चाहता है। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, और तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ, कि आज वो जिंदा है और मेरे पापों से मुझे बचा सकता है। ये जो असलियत थी, ये जो अनुभव था, ये इस प्रकार से मैं बचा और परमेश्वर के पास आ पाया। थैंक यू ब्रदर। बॉब, हम लोग धन्यवाद करें करके गाना सुन सकते हैं, पर मैं उससे पहले हमारे सारे श्रोताओं को बोलना चाहूंगा कि आपके पास कोई सजेशन है गाने के लिए, जो आप सुनना चाहते हैं इस रेडियो पे, प्लीज उसको हमें ईमेल नहीं तो व्हाट्सएप के थ्रू भेजिए, और हम डेफिनेटली उसको प्ले करेंगे यहाँ पे। बॉब, क्या हम गाना सुन सकते हैं? धन्यवाद करें। Yes, let's go to this beautiful song and we'll be right back. धन्यवाद करे प्रभु का, क्योंकि जीवन में अमन दिया है। धन्यवाद करे प्रभु का, जीवन में विश्वास उसी ने दिया है। तो चलो आओ सभी, हाथ उठाकर सभी, बोलो यीशु मसीह की जय, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करे प्रभु की महिमा करे, आकर स्तुति आराधना, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। Beautiful song. We could hear that for the whole of the day and keep listening to that. But we need to continue this amazing story that Brother David Sehar is sharing with us. There's lots more that we need to talk to about. Brother David, you said you did your schooling in MP and then later on moved to the wonderful city of Mumbai. And for the first time, you came in fellowship with this very church that you were earlier talking about, the church that took a lot of interest in talking to people in prisons. And that is the Fort Assembly or the Fort Church. Now, what was it like being part of this church? And I've heard that there is a place called the meeting room there. Can you give us a little bit of history about that? जी जी बिल्कुल। अ, अ, जो प्रिजन के बीच में काम होता था वो था मसीह सुसमाचार भवन, वो था जबलपुर में। और जब मैं यहाँ बॉम्बे में आया तो ये मीटिंग रूम फोर्ट असेंबली, इसकी शुरुआत तकरीबन 1934 में हुई थी। 1934। यहाँ पर एक प्रभु के दास हैंडली बर्ड करके थे, और पहली बार अप्रैल के समय पर, अप्रैल के महीने में 1934 में प्रभु भोज यहाँ पर दिया गया था। इधर पर बॉम्बे ही हमारे मीटिंग रूम के बिल्कुल नजदीक में कुलाबा करके एक जगह है, वहां Mhm. पर उनके घर पर ये प्रभु भोज लेते थे संडे के दिन में। और देखते ही देखते वो इतने बढ़ते गए, प्रभु का काम इतना बढ़ता गया कि एक एक जगह से दूसरे जगह उनको शिफ्ट करते रहना पड़ा। और प्रभु की योजना के अनुसार एक एक जगह मिला, वो है क्वींस मैंशन में द मीटिंग रूम। ये यहाँ पर प्रभु का ये विटनेस, ये गवाही स्थापित हुआ 1940 में, 1940 में जून Okay. में पहली बार यहाँ पर प्रभु भोज लिया गया था। और ये अगर आप जानना चाहें तो ये बिल्कुल ही मध्य में है। यहाँ पर सेंट्रल लाइन आता है जहाँ पर वीटी स्टेशन है, विक्टोरिया टर्मिनस, या आज की तारीख में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहते हैं। और दूसरी ओर आप चर्च गेट जो वेस्टर्न लाइन है,
वहां से Hmm. बिल्कुल मध्य में आता है और कई लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर प्रभु का ये काम स्टार्ट हुआ। तकरीबन 10 लोग थे पहले शुरुआत में, उसके बाद प्रभु ने आशीषित करते गए और ये प्रभु के दास तकरीबन 6 साल ये काम किए और उसके बाद उनको प्रभु ने बुला लिया। उसके बाद उनने तब तक उनने एक दूसरे जन को तैयार कर दिया था, एक तिमोथी तैयार हो गया था अंकल दनम करके, और फिर उनने ये और प्रभु के काम को बढ़ाया। यहाँ उन दिनों में यहाँ पर हुआ इस प्रकार से हुआ था कि ये वॉर के सिचुएशन में कई लोग बाहर से इंडिया आते थे। तो यहाँ पर एक ट्रांजिट कैंप हुआ करता था वर्ली में, तो वहां से लोगों को बुलाते थे और यहाँ पर रीडिंग रूम हुआ करता था। उनको ये मौका दिए कि रीडिंग रूम है, रेस्ट रूम है, आप यहाँ पर रुकिएगा, और उसी समय प्रभु का ये संदेश और प्रेम के बारे में बताया जाता था। तो शाम को तकरीबन ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों में 80, 90, 100 लोग इस प्रकार से लोग उधर आते थे Hmm. सुसमाचार सुनने के लिए, और कई लोग प्रभु को स्वीकार करने लगे इस प्रेम के द्वारा। उसके Wonderful. उसी समय इस प्रकार होने लगा कि उनको लिटरेचर देने के लिए लिटरेचर नहीं था। ये जो पैम्पलेट देना है, बुकलेट देना है, तो वो मुश्किल हो गया था। तो ये अंकल दनम थे जो प्रिंटिंग भी जानते थे, तो वहीं से जीएलएस की भी शुरुआत हुई, गॉस्पेल लिटरेचर सर्विस, और वो प्रिंट करते थे और यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट होता था और सबको ये संदेश सुनाया जाता था। इतना ही नहीं, इसमें हम कई बार इस प्रकार से सोचते हैं कि भाई लोग ही काम में हाथ बटाते हैं। इस प्रकार से नहीं था, यहाँ पर कई बहनें भी थी जो इसमें काम बटाते रहे, और उनकी गवाही से, उनकी पहुनाई से, जब ये नए नए सेलर्स, ये जो वॉर के जो आर्मी मैन Hmm. थे, उनको घर लेके जाते थे, तो उस प्रकार का प्यार दिखाया ये सिस्टर्स ने, ये बहनों ने, कि वो छू लिया, और उससे भी कई लोग प्रभु के पास आ गए और बच गए। इतना ही नहीं, उस समय पर ये भी था कि कई लोग गल्फ जाते थे दक्षिण भारत से, तो वो भी यहाँ पर आते थे, रुकते थे और सीखते थे, और प्रभु के नजदीक आने का ये मौका मिला था। तो ये है फोर्ट असेंबली की इतिहास, या जिस प्रकार से प्रभु ने उनको बढ़ाया। हैंडली बर्ड 10 लोगों से जो शुरुआत हुई, आज प्रभु की दया से ये गवाही अभी भी चल रहा है और अभी भी इस प्रकार की सेवकाई चालू है। Amazing. I mean, Handley Bird, I think, is the same person who was also inspirational in a lot of churches being formed in Kerala as well. I think it's the same Handley Bird, if I'm not wrong. एग्जैक्टली, Yeah. ही हैज Yeah. ये कोयम्बतूर में थे पहले। इस Hmm. बॉम्बे के सेवकाई से पहले कोयम्बतूर और केरला में दोनों जगह पे वो बहुत सेवकाई किए, और उनका काम वहां पर दिखता है केरला में और कोयम्बतूर में। Amazing. What history, amazing history. It's wonderful to hear, all this history. And one thing interestingly, the other day you were telling me about two people who had walked in to the meeting room to hear the gospel one day. And one was Uncle Aaron Luther, and another was the very famous filmmaker Prem Chopra. Now, I've heard this story, and tell us, is that true? And who was speaking that day? Did this really happen? बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल हुआ था। ये इसका शुरुआत जो शख्स ने उन्हें अंदर लेके आया था, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। उनका नाम है रॉबी एंड्रूज, जो वहाँ पर इनको दोनों को अंदर लेके आए। रॉबी एंड्रूज ये नेवी में थे और वो एक जवान थे, और उनने जब सुना कुछ संगीत का आवाज आ रहा है वहाँ पर, माउथ ऑर्गन का, ट्रम्पेट का, ये छोटे बच्चों का जो छोटा ऑर्गन रहता है वो बज रहा है, तो वो बहुत दिलचस्प हो गए। वो जा रहे थे अपना यूनिफॉर्म को लॉन्ड्री को देने के लिए, और जैसे वो सुने दूसरी तरफ ये आवाज आ रहा है, तो जाके खड़े हो गए। ये इस प्रकार के सर्कल बनाते थे और एक लाउड स्पीकर में ये गाना पहले बजाते थे और उसके बाद परमेश्वर का संदेश सुनाते थे। हार्डली 5 मिनट 6 मिनट में ये सुना देते थे बॉम्बे के स्ट्रीट में। तो ये अच्छा. बिल्कुल दिलचस्प हो गए कि ये भी नॉर्मल क्रिश्चियन थे रॉबी एंड्रूज,
अंकल, और इनको बहुत ये हो गया कि अरे म्यूजिक है चलो। तो उसके बाद वो आए इसी मीटिंग रूम में, प्रभु ने उनको बचाया और उनकी जीवन बिल्कुल बदल गई। और वो जाके बाहर वापस प्रचार करने के लिए या प्रीच फिशिंग करने के लिए हम लोगों को इनवाइट करते हैं, तो उसे हम फिशिंग बोलते हैं। तो वो नीचे ही जिस जिस तरह से मैंने बोला कि चर्च गेट और सीएसटी स्टेशन बिल्कुल नजदीक है, तो कई लोग आते जाते रहते हैं, तो उनको निमंत्रित किए। तो उस समय पर अंकल लूथर अ, थे और मिस्टर प्रेम चोपड़ा थे, दोनों को अंदर निमंत्रित किया गया। और उसी शाम को अंकल लूथर ने अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दिया। और उस शाम को अंकल बक्सिंग वहां पर संदेश दे रहे थे। Oh, और ये जो मिस्टर प्रेम चोपड़ा उसके बाद थोड़े दिन आए, पर प्रभु का अ, अ, प्रभु का पूरा अनुग्रह अंकल एलन लूथर पे था। और जिस तरह से वो एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में कई चीज किए, और उसके बाद दिल्ली में वो ग्रेस असेंबली में एक प्राचीन थे, और प्रभु ने अभी उन्हें बुला लिया है, अभी वो प्रभु के साथ है। पर उनकी गवाही आप देख सकते हो किस प्रकार से छोटा सा एक फिशिंग में उनको बुलाया गया, और प्रभु ने hmm. उनके जीवन से आशीष बहुतायत को बहुत लोगों को दिया। ब्रदर डेविड, आप जब फिशिंग बोल रहे हो, मेरे दिमाग में वो एक आइडिया, एक इमेज जैसे बन रहा है, जैसे मछली को पकड़ना। आपकी कलीसिया जो आपसे बातें अब जब सुन रहे थे, उससे जो समझने को मिला कि आपकी कलीसिया की नींव सुसमाचार और सेवकाई में स्थापित थी। आपकी कलीसिया ने काफी जवानों को इसके लिए प्रेरित किया, प्रशिक्षित किया। इसमें आपका क्या अनुभव था? हाँ, कलीसिया जहां तक हो सके ना, वहां पर एक बोर्ड लिखा है। आप अंदर आओगे, पूरा चर्च खाली है, पर एक बोर्ड लिखा है, जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। इस बात को हमें बार बार सिखाया गया, हमें बार बार बताया गया बाइबल हम्म, के अध्ययन के द्वारा, बाइबल के वचनों के द्वारा। अगर हम इस बात को समझ पाते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो हम्म, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही बात करेंगे। तो जीज वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड, हम इस बारे में बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपके लिए क्रूस पर चढ़ा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के संदेश को हम उठाते हैं, अ, हम बहुत ही आकर्षित रीति से बात कर सकते हैं, हम बहुत कुछ बता सकते हैं, पर जो हमारा नींव है वो प्रभु यीशु मसीह है। तो क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बिना हिचकिचाए, बिना शेम, विदाउट एनी शेम के साथ हम कुछ भी हिचकिचाहट ना हो, और उसके हम्म, बारे में हम बताएं। क्योंकि अगर आप देखो, क्योंकि सच्चाई वही है। ही इज द ओनली वन हु सेज आई एम द ट्रुथ एंड आई एम द लाइफ। सो अगर उसी वही सोर्स है, तो उसके बारे में हमें बताने से कोई हिचकिचाहट नहीं होती। तो हमारी सीख जो है इस कलीसिया में, भले हमने बहुत कुछ चीज सीखा नहीं होगा, पर हमें इस बात को तो अ, अगर आप कहें कि आप सुसमाचार सुनाएं, या फिर आप किसी बगल में बैठे हुए आदमी को बताएं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए हिचकिचाते नहीं है। और उसके अनुभव हमारे जीवन में, जो विश्वास का अनुभव है, हम वो बताना चाहते हैं और वही बताते हैं। क्योंकि वही है, अगर आप देखें किसी भी जन पे अगर मैं विश्वास करूं, पर वो शख्स सीमित है। यहाँ हम्म, पर वही एक प्रभु यीशु मसीह है जो जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, जो तैयार है मेरे लिए अपना जान देने के लिए। और जान दिया उसने अपने उस क्रूस पर मेरे पापों के लिए। और ब्रदर डेविड, मुझे आपने उस इसी सवाल को थोड़ा और आपको मैं इसी सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि हमारे श्रोता जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहूंगा कि सड़क पे चलते हुए या गली पे चलते हुए आपने जैसे बोला कि आप इतने प्रभावित हो जाते हो, आप ये सुसमाचार कैसे, क्या बता सकते हो? ये क्या थियोलॉजी है? क्या ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं परमेश्वर के बारे में? ये या इसको कैसे हम बता सकते हैं? देखिए,
प्रभु यीशु मसीह भी जब हमसे बात किया बाइबल के द्वारा, बड़े ही सरलता से बात किया। हमारा फॉर एग्जांपल मेरा ज़रूरत है कि मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, दुनिया हम्म, भर में दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रहा हूँ और कोई दरवाज़ा मेरे लिए खुल नहीं रहा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं ही द्वार हूँ और वो दरवाज़ा खोलता है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं प्यासा हूँ, मैं ढूँढ रहा हूँ, मैं ढूँढ रहा हूँ कि मेरे इस प्यास को कोई बुझा दे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं ही जीवन जल हूँ। इस प्रकार के चीज़ को अगर हम हमारे प्रियजनों के पास पहुँचाएँ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे लगता है कि ये बड़ा ही प्रभावित होता है और बहुत ही अनोखा अनुभव रहता है लोगों के लिए, क्योंकि सब जन परेशान हैं, सब जन शांति की खोज में हैं। और जब हम इस कलीसिया के नीचे आते हैं, कई लोग से मिलते हैं, बहुत लोग हमें सीधा नहीं बोल देते कि नहीं, ये सब दूसरे धर्म की बात है। पर ये धर्म नहीं है, हम तो सिर्फ हमारे अनुभव के बारे में, हमारा जो पर्सनल रिलेशनशिप है किसी परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, हम वो बांटते हैं। और तो कई लोग इस बात को सुनते हैं और स्वीकार करते हैं और आते हैं प्रभु यीशु मसीह के अपने मुख से अंगीकार करते हैं और इस नए अनुभव में स्थापित होते हैं। Now that's a very good point. Now, the truth of the matter is that many people, even today, willingly accept Christ as their personal savior without any external influences. But people have different opinions to that, and I respect those opinions. Looking from outside, we can have different opinions to that. Now, as someone looking from outside, if this question is asked, what is it that you offer to anyone who comes to Christ? What is it that you offer as the meeting room, as the church there, or just as a person? What is it that you offer? देखिए, हमारे पास तो कुछ है नहीं। हम आपके जैसे आम इंसान के जैसे ही है, हमारे अलग संघर्ष है, पर हमें एक एक उद्धारकर्ता मिला है, हमें एक एक साथी मिला है, जिसे हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। देखिए, अगर मुझे ये जो मैं रोग के बारे में कह रहा था, बॉयल के बारे में, अगर मुझे कहीं से पता चलता है कि कोई एक डॉक्टर है और वहाँ से मुझे उसका अ, इट गेट्स हील्ड, अगर वो चंगाई प्राप्त Hmm, होता है, तो मैं hmm, किसी दूसरे को उसके बारे में नहीं बताऊँगा। मैं शांत रहूँगा, ऐसा नहीं होगा ना। मैं सबको बताऊँगा कि भई अगर ये absolutely. प्रॉब्लम है, तो आप जाइए। तो अगर आप अशांत हैं, अगर आप बेचैन हैं, अगर आप इस मुश्किलाहट में हैं कि भई कि मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि मेरे से सिर्फ़ गलत ही होता है। तो उस समय पर हमारे पास एक ही उपाय है कि ठीक है भाई, ये है हमारे पास डॉक्टर, अगर आप इन्हें लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने मुख से आप अंगीकार करते हैं अपने पापों के बारे में और उनको स्वीकार करते हो, तो आप एक नए जीवन प्राप्त करते हो। तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, पर हमारे पास एक व्यक्ति है जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। यही हमारा संदेश रहता है कि इन द डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ लाइफ, हो सकता है कि हम बहुत ही उतार-चढ़ाव ज़िंदगी के संघर्ष में हैं, पर उस समय पर भी ये प्रभु यीशु मसीह आपके साथ बने रहेगा। मैं ये गारंटी नहीं दे रहा कि आपके जीवन में बिल्कुल ही प्रॉस्पेरिटी होने वाला है, आपके जीवन में बिल्कुल ही सक्सेस होने वाला है। मैं वो नहीं कहता। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके मुश्किल घड़ी में, आपके असहाय स्थिति में, आपके ऐसे स्थिति में जहाँ पर कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता, उस समय पर आप देखिए, इनका नाम, यीशु मसीह का नाम आप अपने मुख से निकाल के देखिए, आपके लिए वो तत्पर तैयार है कि आपको वो सहायता करें। Amen. Wonderful. And I think the way that you are going into the streets and a lot of people are hearing the gospel, I think there are still a lot of opportunities out there, isn't it? For जी, sharing बिल्कुल। even today. Yeah. जी, जी, बिल्कुल।
ये बात सही है कि चुनौतियां बहुत है, आसान नहीं है। पर ये बात हमें दिमाग में बैठा लेना है कि प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई और नहीं है। तो ऐसे अ, जगह पर हमें इस प्रकार का कई बार ताड़नाएँ मिलते हैं, कई बार हमें सुनना पड़ते हैं गाली-गलौज के हिसाब से। पर ये बात हमारे दिल में और ज़हन में बैठ चुका है कि ये कोई धर्म नहीं है। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है अ अ, कि मैं आपके ऊपर थोप दूँ, that I impose on you. It's Hmm. nothing like that. It is an experience. I have personally experienced Lord Jesus Christ in my life. Would you want to accept it? Yes. So, अगर इस प्रकार के संदेश हम सुनाते हैं तो बहुत अवसर बहुत है और बहुत भूखी आत्माएं हैं, प्यासी आत्माएं हैं, भटकती हुई आत्माएं हैं जो इधर-उधर भटक रही है। और ये प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है, जो जो यूनिक है, ये प्रभु यीशु मसीह जो है वो यूनिक है। इसके बारे में हम जब बताते हैं तो दिल से लोग स्वीकार करते हैं। Absolutely. Well, हमने बहुत गाना सुना है, लेकिन next song we are going to hear is a song called Arpan. It is written and tuned by David Sahar and sung by Robinson Sharu. लेकिन उसके जाने के पहले, what was the story behind this? Is there a story behind writing the song, brother? हम एक कैंप में जाने वाले थे, तो उस समय it was a rededication that wanted to bring to myself in remembrance and to others. And if you अगर हम इसकी बोल की ओर ध्यान दें तो वो क्रूस की ओर आपको लेके जाएगा और क्रूस के उस खून के बारे में आपको बताएगा जिससे हमें शुद्धि मिलती है और शांति और नया जीवन मिलता है। Beautiful. Dear listeners, let's go to this beautiful song written and tuned by David Sahar, and we'll be right back. अर्पण मैं करता हूँ तुझको, तू ही तो मेरा पिता है। अपनी इच्छा से तू ले चल, ये जीवन मैं सौंपता हूँ। तेरा प्रेम जो क्रूस पर देखा, चरणों में तेरे जो मुझको लाया। तेरा प्रेम जो क्रूस पर देखा, चरणों में तेरे जो मुझको लाया। करके तू पाक मेरे दिल को, सामर्थी लहू से। करके तू पाक मेरे दिल को, सामर्थी लहू से। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं हूँ, इस जग में परदेशी ठहरा। मुझको तू ले चल हमेशा, तुझ में बना मैं रहूं। तेरा प्रेम जो क्रूस पर देखा, चरणों में तेरे जो मुझको लाया। तेरा प्रेम जो क्रूस पर देखा, चरणों में तेरे जो मुझको लाया। करके तू पाक मेरे दिल को,
What a beautiful song, beautiful lyrics, wonderfully tuned, and as always, wonderfully sung by our brother Robinson. Well, Anuj, I hope you really enjoyed that song. Lovely, lovely, lovely. I just want to repeat that verse, जो तेरा प्रेम जो क्रूज पर देखा मुझे तेरे चरणों पे लेके आया. Such a beautiful, beautiful lyrics, touching the heart. क्योंकि उस क्रूज से जो प्यार प्रेम जो है वो जिंदगी को बदल सकता है. अभी हमने जो गवाही भी भाई डेविड से सुन रहे थे कि कैसे कैसे यीशु मसीह का जो प्यार है जेल के अंदर तक भी लोगों को, दिलों को, कट्टर कैदियों के दिलों को भी बदल सकता है. और ये प्रेम के बारे में हम बात करते हैं. बहुत ही बहुत ही बहुत ही सुंदर कहानी गाना आपने बनाया है. भाई डेविड, आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा. ये एक कॉम्बिनेशन सवाल है क्योंकि हम अभी आजकल जो चल रही कोविड महामारी, इसकी पीक टाइम पे हम लोग काफी सतर्क थे, हम काफी चीजें फॉलो कर रहे थे, पर देखते हैं कि धीरे धीरे वो दर्द में सीखे हुए जो चीजें थे हम सब आजकल भूलने लग गए. मेरे को लगता है पाप में भी हम लोग पाप के बारे में भी हम लोग काफी बार कैजुअल होते जाते हैं, उसके बारे में भूल जाते हैं. आपके विचार में इसके बारे में कुछ बताइएगा. साथ ही में आपने अपने जीवन में और अपने निजी जीवन में और अपने प्रोफेशनल जीवन में कुछ सीखे वो भी मैं और हमारे श्रोता आपसे जानना चाहेंगे. जी बिल्कुल. कोविड का समय हमारे लिए भी मुश्किल का समय था. मेरी वाइफ के भाई गुजर गए पिछले साल अप्रैल के समय पर, अप्रैल के महीने में. तो हमने देखा कि किस प्रकार से हम देखे कि किस प्रकार से बहुत संघर्ष का समय था कि हम जब वहां पर गए थे, बॉम्बे से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर नासिक एक जगह है, वहां पर गए थे. तो दुकान बंद, सब बंद, मतलब कोई एक दूसरे को हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है. और ये डिजीज के कारण लोगों को डर बैठा हुआ था कि कहीं हमको ना लग जाए और हमें मृत्यु ना, हम मौत के घाट ना उतर जाएं. तो इस प्रकार के जो समय था कि हम असहाय थे. हम बिल्कुल ही ऐसे परिस्थिति में थे कि हम कहाँ देखें, इधर उधर कहीं नहीं देख सकते. हम सिर्फ ऊपर ही देख सकते हैं परमेश्वर की ओर. और हो सकता है कि हमारे विश्वास में नहीं, पर कईयों के दूसरे के विश्वास में भी उनने ईश्वर ही को पुकारा है. पर वो जो परिस्थिति था उसमें कई लोग कई जो टूटे हुए रिश्ते थे हमने वापस जोड़ा, कई झगड़े थे हमने सुलझा दिया. इस प्रकार के थे. पर जब हम देखते हैं तो कई बार देखते हैं कि वापस हम वही परिस्थिति में जा रहे हैं कि नहीं, हम अपना अकड़ दिखाना ही है. हम वो भूल रहे हैं कि हमारे कोविड में परिस्थिति क्या थी. हमारे यहाँ पर इंडिया में बेड नहीं थे, हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, हमारे यहाँ पर ये रेमडेसिविर का मेडिसिन नहीं था. ऐसे बेहाल स्थिति थी. और उस समय पर हम ईश्वर को याद किए. पर अभी जब हम वापस ठीक लग रहा है कि हम सेटल हो गए, तो हम ऊपर नहीं देख रहे, हम अपने ही विचारों में घूम रहे हैं. तो एक सीख मुझे तब ये मिला कि हर समय हमारे प्रभु जो है वो बदलता नहीं है, और वो लगातार वैसे ही है जैसे वो पहले था, और वो अभी भी वैसे ही है. और हमें उसी पर निर्भर रहना है, किसी और पे नहीं. यही सीख मुझे एक और तरीके से मिला जब तकरीबन 10 साल 12 साल के बाद एक बिजनेस स्टार्ट किया था. तो एडवर्टाइजिंग का बिजनेस था. और 2019 में कोविड के पहले एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया था, और उसमें भारी लॉस हो गया क्योंकि जो क्लाइंट के लिए काम किया था वो डिफॉल्ट कर दिए. तो उसके पहले का परिस्थिति ये था कि मैं कर सकता हूँ,
हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि मैं इस प्रकार का कहता था कि हाँ, प्रभु की दया से मैं कर सकता था, पर एक्चुअली जो एम्फेसिस था वो मैं पे था। इस प्रकार का सोच था कि नहीं, इतना एक्सपीरियंस है, हम तो क्लाइंट लेके आ सकते हैं और इस प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं। आत्मविश्वास जो बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं, हम किसी प्रकार के क्लाइंट को भी हैंडल कर सकते हैं। इस प्रकार का जो सोच था वो भी प्रभु ने तोड़ा और कहा कि नहीं, आप मुझ पे ही निर्भर रहिए, आप किसी इंसान पे निर्भर मत रहिए और ना ही किसी इंसान पर देखिए, पर आप सिर्फ मुझ पर देखिए। तो वो सीख जो था वो भी एक अच्छा सीख था कि मैं प्रभु हमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं, तो ये भी मुझे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिला था। तो अभी किसी और को देखने से अच्छा ऊपर देखना ही अच्छा है, इस प्रकार का सीख है मेरे साथ। Amazing. थैंक यू सो मच ब्रदर डेविड। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी जिंदगी के बारे में और जो आपकी गवाही है हमारे को और हमारे श्रोताओं के सामने रखा। स्पेशली जो आपने आखिरी में जो सीख बताई कि अपने ऊपर ना पूरी तरह से निर्भर करके परमेश्वर के पर निर्भर करने के लिए, वो बहुत ही सच्ची बात है। और बिल्कुल ही हम सबको ये ट्राई करना चाहिए कि परमेश्वर पर अपने पूरा निर्भर करना चाहिए। थैंक यू सो मच भाई बिल्कुल, डेविड कि आप आए, थैंक हमारे यू। साथ बातें किया, और सारे Yes. श्रोताओं के लिए भी कि हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। Thank you Thank so you. much. It was love joining here. Thank you. Yes, David Sehar, thank you so much for joining us and talking to us about your life and what God is doing through you. And we really enjoyed. I hope we'll see you again on Bob's Radio. Thank you. That will be a privilege. Thank you. Well, dear listeners, I hope you've enjoyed today's session as well. Please do share it with your friends and family. Please use our links on Facebook and YouTube, and do share it with your friends and family and groups, and let them also hear what God is doing in the lives of His people. Thank you so much for tuning in today. Do join us next Monday as well, where we have another amazing guest joining us and some wonderful segments. If you would like to hear songs just as RJ Anuj was mentioning, do let us know your suggestions and we'll play your songs. If there is other things that you would love to tell us, please WhatsApp us or email us on Bob's Radio 21.37 FM at gmail.com, and we'd love to hear from you. Well, it's time we say goodbye along with RJ Anuj and David Sehar from Mumbai. This is Bob signing out. Goodbye, good night, and God be with you.